Bismillahirrahmanirrahim. Last I think last week, Thursday, we started lecture number 4, but we didn't finish because of some labs and tasks. So we are going to cover to finish lecture 4 today, and also we are going to start lecture number 5. We started Amazon EC2 topic, so that is our topic today. So we are going to cover that. So basically, EC2 क्या है? It is one of the most popular of AWS offering. मतलब अगर आप AWS की services को देख ले, so Amazon EC2 is one of the most popular AWS offering. EC2 stands for Elastic Compute Cloud. It is infrastructure as a service. You can also use EC2 instance as a platform services. वो depend करता है कि जब आपने जो है एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की रिक्वेस्ट, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन आप ये जहन में रखें कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, जिसमें हम एक वर्चुअल मशीन, एक रिमोट कंप्यूटर हम रेंट पे लेंगे, हम AWS से। वहाँ पे हम अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम, हम अपनी मर्जी का एप्लीकेशन ये हम इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह हम लोग एक फिजिकल मशीन मार्केट से लेते हैं, हम बाहर जाके हम एक कंप्यूटर लेते हैं, वहाँ पे रैम CPU वी डिसाइड based on our budget. Okay, let's say I'm going to purchase a computer, so we finalize okay we have to purchase a 16 GB RAM laptop with 8 cores of processor and 256 GB of SSD and 1 TB of HDD and 2 GB of graphic card. So we already decide that. We decide that and we go to market and we purchase a hardware. Same story is here. We go to AWS, we provide our requirements to them that hey, I need a computer, and they deploy a machine there. And we already discussed that last time कि हमारे पास क्या होता है। वहां पे सीन ये होता है कि वहां पे भी जिस तरह हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर होते हैं, तो सेम उसी तरह AWS के ऊपर भी के पास भी हार्डवेयर होते हैं। वहां पे सर्वर हार्डवेयर, नॉर्मल हार्डवेयर नहीं होते जिस तरह हमारे लैपटॉप्स होते हैं। एंड दे हैव इंस्टॉल्ड another layer, and that is called hypervisor, right? And then on the hypervisor, when we request them that we need a computer virtual machine, so they deploy a virtual machine. So in AWS, we call a virtual machine EC2 instance. Sorry, guys. That is operating system. It has operating system, and then based depends on our requirements, we install application on them. So this machine is running on the cloud, which is called EC2 instance, and remotely we access that machine and we work on that. Right? How we connect that machine वो हम discuss कर लेंगे, लेकिन ये story होती है। तो ये सारी चीज़ है हमारे पास इनके related जो storing data on virtual drive और ये। So knowing EC2 is fundamental to understand how the cloud works, and we already discussed in our first lecture कि cloud में क्या होता है। रिमोट मतलब हम इंटरनेट की बेस पे, इंटरनेट के थ्रू हम कंप्यूटिंग करते हैं। स्टोरेज, कंप्यूट, नेटवर्क वो हमें रेंट पे मिलता है, एज अ सर्विस हमें मिलती है। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? परफेक्ट। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, सो EC2 sizing and configuration options. The first thing we select that which operating system we want. जिस तरह आप लोग अपने लैपटॉप पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर चाहिए। एक क्वेश्चन है सर। हम्म।
सर उधर जब ये हार्डवेयर पड़े होते हैं, जिस तरह ये विंडो सर्वर हो गया, तो उसी तरह उधर भी लोग बैठे होते हैं हार्डवेयर के लिए। अच्छा, वहां पे सीन ये है कि वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एक ऑटोमेशन टूल्स यूज किए, ऑलरेडी उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए होते हैं। सो वी जस्ट रिक्वेस्ट देम एंड ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल मशीन हमारे लिए डिप्लॉय हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। हाँ, मतलब वहां पे ये सीन नहीं होता कि आप रिक्वेस्ट करते हैं और वो आपको कहते हैं कि चले वेट कर ले, हमारा इंजीनियर जो है वो आपके लिए एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करके आपको देगा। तो वो हम इसी वजह से तो ये क्लाउड सीख रहे हैं कि हमने क्लाउड के साथ, एडब्ल्यूएस के साथ किस तरह इंटरेक्शन करनी, so that we can configure our own machine, and once we click launch, so automatically a virtual machine or EC2 instance will be deployed on the AWS server hardware, on the hypervisor, on the cloud hypervisor, right? And we will be able to communicate with that machine. So यहाँ पे how much compute power means in course के मतलब वो compute power कितना होगा exactly, frequency या मतलब जो gigahertz, कितनी CPU आपको चाहिए, उसमें कितने कोर्स चाहिए आपको, कितना रैम चाहिए, how much storage you need, network adapter speed, firewall rules, security groups, we will discuss about that कि ये क्या है, कुछ हमारे पास जो यूजर डेटा होता है वो क्या है, we will discuss about that, right? And this is very important slide that we should know about the EC2 instance types. So the first thing यहाँ पे अगर हम देखें, so M का मतलब है instance class, कि which class this EC2 instance belongs to। जिस तरह आप लोग मशीन लेते हैं डेल का, तो उसमें डेल लेटीट्यूड और दूसरा कौन सा है, इंस्पायरॉन है कि क्या है, इसी तरह एग्जैक्टली एक्सपीएस, और ये डिफरेंट जो उनके क्लास होते हैं। तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि विच वो स्ट्रो एग्जैक्टली, फिर उसमें कौन सा जनरेशन यू नीड। सो लेट्स से यू नीड 5 जनरेशन, एंड दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन टाइम। लेट्स से अगर ये मैंने स्लाइड बनाई है, तो लेट्स से ये मैंने लास्ट ईयर बनाई है फॉर एग्जांपल, तो दिस ईयर maybe the instance will be different, the generation will be different, right? 2x large mean the size within the instance। तो आपको कितने साइज का इंस्टेंस चाहिए, मतलब कितना रैम और कितना सीपीयू, जितना आपका साइज आप बढ़ाते जाएंगे उतना इसका क्या होगा, रैम और सीपीयू ये डिफरेंट होंगे। फिर इसके अलावा वी हैव दीज टाइप्स आल्सो अवेलेबल, कि जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, वो भी डिपेंड करता है। You can also read about, when you click on this link, you can check कि क्या सीन होता है। So if you are showing the browser, you can see here we have general purpose machines. In general purpose, we have these types of instances, and you can see here, and M7G is the, अभी वो slides में 5 था, अभी यहाँ पे 7 are powered by ARM based AWS Gravitation 3 processors। मीडियम में आपको मिलेगा 1 CPU और 4 GB रैम, और अगर आप आगे जाएंगे सो मेटल में आपको 256 GB रैम तक मिल सकता है, 64 vCPUs के साथ। आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। सर ये इंस्टेंस जो है ये ऑलरेडी रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है या सिस्टम से AWS पे पड़े हुए हैं। नहीं, ये बेसिकली उनके पास हार्डवेयर है, राइट?
जी सर। तो सारे हार्डवेयर जो है वो एक जैसे नहीं होंगे। मतलब कुछ जो है पावरफुल हार्डवेयर होंगे, कुछ जो है वो थोड़े से कम हार्डवेयर होंगे। लेट्स से अगर आपको एक पावरफुल EC2 इंस्टेंस चाहिए तो यू विल रिक्वेस्ट AWS कि आई नीड अ मशीन विद 256 GB ऑफ रैम, और ये मुझे इसमें जनरल पर्पस ये सारा कुछ, तो उसकी बेस पे फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर ये एक्चुअली, ये सर ये बेसिकली एक्चुअली। यहाँ पे आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ओके ये जो है ये बेसिकली ये आपको बता रहा है कि यू कैन कॉन्फ़िगर इंस्टेंसेस बेस्ड ऑन दिस इंस्टेंस साइज। तो ये वहां पे हार्डवेयर पड़ी हुई है, सर्वर हार्डवेयर। तो हर एक हार्डवेयर की अपनी स्पेसिफिकेशन है। हार्डवेयर 1 पे आप M सीरीज EC2 इंस्टेंस चला सकते हैं। हार्डवेयर 2 पे आप T सीरीज के चला सकते हैं। फिर इसी तरह वी हैव सम हार्डवेयर अवेलेबल ऑन द AWS कि जिसमें HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंस्टेंस आर पर्पस बिल्ड फॉर रनिंग HPC वर्कलोड एट स्केल। इसी तरह अगर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे यूज केसेस भी पड़ी होंगी कि मेमोरी ऑप्टिमाइज जो है वो किस लिए यूज होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। तो दीज आर डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल इन AWS हार्डवेयर पड़े हुए। फिर वी रिक्वेस्ट देम, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखें, दिस इज सर आवर they are EC2। basically, excuse sir, I have other question. Sir, they are basically establish this type of instance for the requirement of the users or the clients. Exactly. And we decide then Hmm. during the deployment or launching the EC2 instance, we decide which EC2 instance we need. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी हम इसको ये जो जनरल पर्पस है इसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, द सर जनरल एग्जांपल पर्पस। किस तरह हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में? Okay, so basically you need, okay, let's say you need a general purpose machine like normal machine, जिसमें आप लोग बेस्ट अपनी मर्जी का कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं होता, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कौन सा एप्लीकेशन और ये चलाना है। तो बस आप इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट कर दे कि मुझे सर्वर 2022 चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मुझे फॉर एग्जांपल 4 GB रैम चाहिए, उसमें 1 CPU चाहिए, और और उसके ऊपर फिर क्या कर ले, फिर उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ले, फिर उसको अपने प्रोडक्शन के साथ कनेक्ट कर ले यूजिंग VPN टनल्स या जो भी हम आगे पढ़ेंगे। और आपके जो एंड यूजर्स हैं उनको ये फील नहीं होगा कि उनका एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड के सर्वर पे चल रहा है या लोकल सर्वर पे चल रहा ओके सर। है। यू गॉट इट? जी सर, थैंक यू। अच्छा जी। तो इसी तरह वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, और विद टाइम यू विल गेट टू नो। मतलब हम इसी वजह से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कल अगर आपके पास एक कस्टमर आएगा, आपका क्लाइंट, एंड दे विल रिक्वेस्ट यू कि हे आई नीड टू मूव माय वर्कलोड टू द क्लाउड, तो आप डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि चले बस सही है कि मैं आपके लिए EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करता हूँ। आप कहेंगे कि नहीं, फर्स्ट टेल मी which type of application are you running on your existing physical server, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा वर्कलोड है, उस एप्लीकेशन में किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, रैम की या प्रोसेसर की या स्टोरेज की या ग्राफिक कार्ड्स की, या मशीन लर्निंग का वर्कलोड है या फिर AI का वर्कलोड है। तो बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड, यू विल सजेस्ट दैट hey you need this one। अगर हम T3 पे क्लिक कर ले तो ये अलग सा उसमें है, उसके प्रोसेसर देखे, आपको इंटेल Xeon स्केलेबल प्रोसेसर मिलेंगे। T2 पे जाए यहाँ पे भी आपको इंटेल Xeon मिल रहा है। M7G पे जाए, आपको कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है?
ये देखिए AWS Gravitation 3 प्रोसेसर्स, डेफिनेटली एक प्रोसेसर दूसरे से डिफरेंट होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। सो ये लिंक है, आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस लिंक, और इस लिंक को आप लोग जरूर जो है उसमें अपने नोट्स बना लें। मैं ग्रुप में भी आपको शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप लोगों को आसानी हो। जी, एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? You should read about these instances. We cannot explain one by one because it's gonna take time. So I hope कि आप लोग खुद ही इसको देखेंगे, और विद टाइम आपको आइडिया भी हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल लैब्स पे जाएंगे तो यू विल गेट टू नो। लेकिन एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन गेट, कि आपको एक सिनारियो देंगे कि लेट्स से हमें एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हमें प्रोसेसिंग पावर की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस केस में आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? और यहाँ पे अगर आप इसी इंस्टेंस पे जाएं तो इसमें फिर डिटेल्स भी लिखी होगी इसके लिए कौन सा है। कस्टम बेल्ट, अगर ये प्रोसेसर आप देखें, यूज केसेस देखें यहाँ पे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, बैच प्रोसेसिंग, एडी सर्विसिंग, वीडियो इनकोडिंग, गेमिंग, साइंटिफिक मॉडलिंग। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक मॉडलिंग एक यूज केस है, तो विच EC2 instance type you would suggest, compute optimize या general purpose? तो your question answer will be compute optimized। अगर आप general purpose पे जाएं और उसकी use cases देखें, application built on open source software such as application servers, microservices, gaming servers, mid-size data store and caching fleets, accelerating compute पे जाएं, ये AI application including question answering, code generation, video and image generation, speech recognition and more. So you can search about that use cases और वहां से आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं। और जब आप सोल्यूशनिंग करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, लेट्स से यू बिकम अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप लोग को याद होना चाहिए। आप बेशक अपनी रिक्वायरमेंट्स ले ले क्लाइंट से और बैठ के फिर आप अपनी स्टडी कर ले। फिर एक टाइम आएगा कि फिर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आपने इतनी बार देखा होगा कि आपको यू विल गेट, आपको याद आया होगा कि हाँ बस सही है, अभी मैंने ये वाला सजेस्ट कर। चले जी, इंस्टेंस टाइप, ये देखें, जनरल पर्पस, great for diversity of workloads such as web servers or code repositories, balance between compute, memory, networking. And in this course, we will be using T2.micro because it's available on your free tier account, right? क्योंकि ये फ्री टियर अकाउंट में आपको अवेलेबल है। जो हमारे पास T2 होगा, ये देखें। सो अगर हम यहाँ पे काम करेंगे, EC2 इंस्टेंस डिप्लाई करेंगे, वो किस तरह होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमने T2 माइक्रो सेलेक्ट करना है क्योंकि वो फ्री अवेलेबल है। और आप किस तरह आपको पता चलेगा, यू कैन सर्च अबाउट AWS फ्री टियर सर्विसेज एंड यू कैन सर्च अबाउट दैट एंड देन यू विल गेट द आइडिया। और वहां पे आपको मैसेज भी आएगा, एक शो भी होगा। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा है, T3.micro, T2.micro और T3.micro इंस्टेंस डिपेंडेंट ऑन रीजन। तो ये देखिए आपको ये फ्रीली अवेलेबल है फॉर 750 आवर्स। तो जो आपने $1 अभी तक स्पेंड की है, यू आर गुड टू गो फॉर 750 आवर्स। अगर हम अभी क्लास में EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलेगा पूरे कल तक, ये चलेगा। आफ्टर द लेक्चर वी विल स्टॉप दैट इंस्टेंस, राइट, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है वो ना हो। तो मैं आपको इसी तरह गाइड करता रहूंगा कि जब हम लैब डिप्लॉय करेंगे तो लैब के बाद हम अपनी जितनी भी हमने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं या जो रनिंग हालत में है, सो वी हैव टू स्टॉप देम, राइट। सो वी विल डिस्कस दैट। इसी तरह वी हैव कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, ग्रेट फॉर कंप्यूट इंटेंसिव टास्क दैट रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, और ये these are requirements।
memory optimize, floating point number calculation, graphic processing, data pattern matching. We have storage optimized, high frequency online transaction, OLTP systems, NoSQL databases, relational databases, data warehousing application, distributed file systems. And now we have an exercise. अभी हमने एक practical lab करना है जिसमें हमने एक EC2 instance जो है launch करना है लिनक्स का या विंडोज का, दोनों हम कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको जो आपने VMware वर्कस्टेशन या Oracle वर्चुअल बग्स जो आपने ऑलरेडी वो किया हुआ है, इंस्टॉल किया है, तो उसका हमने क्या करना है, उस पे भी हमने VM को डिप्लॉय करना है। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। So let me pause for a while. If you have any question, you can ask me. If there is no question, we can move forward. Sorry जी, I can give you कि confusion clear हो जाए। अच्छा जी, तो हमारा टास्क नंबर 1 है कि लॉन्च EC2 इंस्टेंस रनिंग लिनक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड AWS अकाउंट, जो आपका फ्री टियर अकाउंट आप लोगों ने बनाया है वहां पे लॉग इन ले लो। सो दिस इज माय फ्री टियर अकाउंट, राइट। यहाँ पे अगर आप सर्विसेज देखें, सो वी हैव डिफरेंट सर्विसेज, और आज जो हम सर्विसेज पढ़ेंगे वो है कंप्यूट में EC2 इंस्टेंस, जिसका नाम है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, मींस वर्चुअल सर्वर्स कंप्यूटर्स। इस पे आप क्लिक कर लें तो अभी आपको जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, दिस डैशबोर्ड इज EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड। तो हमारा अभी इस वीक पूरा हमारा जो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इसी डैशबोर्ड में होगी, हम इसी डैशबोर्ड में काम करेंगे। We will discuss different instance types, templates, spot requests, saving plans or AMIs, elastic block stores, network and security. So we will discuss all these things, right? Placement group क्या है, elastic IP क्या है, security groups क्या है, right? So the first step we are going to do is हम instances पे जाके, अभी currently अगर आप देखें, so we don't have any services running। यहाँ पे देखें हर फिगर जो है वो 0 है, 0 0 0 0, ये हमारे पास जीरोस है, राइट, दीज आर जीरोस। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे जब आप जाएंगे तो अभी करंटली देयर इज नो इंस्टेंस रनिंग, राइट, देयर इज नो इंस्टेंस। सो यू कैन क्लिक लॉन्च इंस्टेंसेस हियर, और यू कैन क्लिक हियर लॉन्च इंस्टेंस। व्हेन यू क्लिक हियर, so यहाँ पे the first thing is give it a name। For example मैं नाम दे दूं कि EC2-01- KBIT AWS Cloud Batch 1, मतलब ये मेरा एक कंप्यूटर है, राइट। अच्छा, when you scroll down, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रही है कि which operating system you want on that instance। So you can select Windows, I just select Windows। फिर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास है, देखें इंस्टेंस टाइप्स, ये मुझे नजर आ रहा है कि कौन सा इमेज आपको चाहिए। सो ये फ्री टियर एलिजिबल, जिसमें फ्री टियर लिखा है आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चले हम ये बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है हम वो सिलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये विंडोज सर्वर 2022 फ्री टियर। नीचे जाए, हियर यू सेलेक्ट कि कौन सा आपको चाहिए इंस्टेंस टाइप। So you can scroll down T2.nano, T2.small, these are not eligible। ये देखें जो फ्री टियर एलिजिबल है उसके साथ लिखा होगा, ये देखें
C5 इसी तरह जाते जाएं और you can find a lot of instance types. So currently we are good for this one. So I just selected T2.micro and you can scroll down. अच्छा, जिस तरह हमारे पास एक लैपटॉप होता है और लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पासवर्ड होता है, राइट? तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें एक कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें जो हमारा मशीन है वो क्लाउड पे चलता है और हमें थ्रू इंटरनेट उस मशीन के साथ इंटरेक्शन करनी होती है, तो हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, बल्कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए एक सिक्योरिटी मेथड ये भी है कि आप अपने लिए एक की पेयर बना लें। की पेयर क्या होता है, वी विल डिस्कस्ड अबाउट दैट, लेकिन की पेयर अभी करंटली नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक की पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास एक की होगी और उसी की बेस पे हम इसी इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, मतलब लॉग इन लेंगे हम इसके ऊपर। इसमें हमारे इस की पेयर में ये एनक्रिप्टेड होता है। इसको पहले हम डिक्रिप्ट करेंगे, जैसे ही हम डिक्रिप्ट करेंगे हमें एक पासवर्ड मिलेगा और फिर उसी पासवर्ड पे हम इसी मशीन के ऊपर लॉग इन लेंगे। तो currently we don't have any key available, so we can select key pair. And I can use existing key pair, a single key pair with multiple instances, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप लोग ये कर लें कि अगर आपने प्रैक्टिस करना हो, so create a key pair for each virtual machine, a new key pair for each virtual machine. So that would be my suggestion. बाकी आप लोग उसको देख सकते। चले create a new key pair। जब आप इस पे क्लिक कर लें, इसको एक नाम दे, कोई भी की पेयर AWS 01 और इसको आप, तो हमारे पास दो फॉर्मेट्स है, वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। तो आप फिलहाल जो .pem है वही सेलेक्ट करें और एक की बना ले। तो जैसे आप की पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ये की पेयर आपके मशीन में डाउनलोड हो जाए। फिर इसको हमने किसी सेफ लोकेशन पे स्टोर करके, क्योंकि फिर हमने इसको यूज करना। अच्छा, नीचे जाएं, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क सेटिंग्स है। तो करंटली हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम VPC डिस्कस कर ले, या फिर हम सबनेट्स के बारे में डिस्कस कर ले, या फिर हम पब्लिक IP या हम सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर ले, राइट? तो इसको एज इट इज रहने दें। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हमारा एक सेपरेट टॉपिक है नेटवर्क पोर्शन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर नीचे जाए, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये एक स्टोरेज है 30 GB का, एक रूट वॉल्यूम, लीव इट एज इट इज। फिर दूसरे स्टोरेज ऑप्शंस क्या है, वी विल डिस्कस, राइट? जस्ट लीव इट एज इट इज। अगर आप एडवांस डिटेल्स को कर लें तो वी हैव other options also available, so we are not going to touch them right now, so you can leave all these settings as it is और simply आप लॉन्च कर ले। जैसे आप लॉन्च करेंगे विद इन मिनट्स आपका कंप्यूटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आपके लिए क्लाउड में एक कंप्यूटर जो है वो डिप्लॉयड हो गया। उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर 2022, और इस मशीन का एक पब्लिक IP होगा और उसी पब्लिक IP के थ्रू हम अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसको IP एड्रेसेस का नहीं पता, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, raise your hand if you don't know about IP addressing. Is there anyone? अच्छा, सारे IP एड्रेसेस वाले माहिर हैं। मैंने फॉर द सेफ साइड एक लेक्चर आप लोगों के क्लास ग्रुप में पोस्ट किया है IP एड्रेसिंग का, सो आप उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से पूछना है रिगार्डिंग पब्लिक IP एड्रेसेस, रिगार्डिंग प्राइवेट IP एड्रेसिंग, सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, राइट? नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो ये मेरा जो लेक्चर है, मैंने जो अभी आपको फॉरवर्ड किया है ग्रुप में IP एड्रेसिंग का, इसको आप ज़रूर पढ़ लें
ताकि फिर आप मुझे आंसर दे सके। तो इस मशीन का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, राइट। अभी देखते हैं कि इंस्टेंस हमारा डिप्लॉयड हो गया। यहाँ पे देखें, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च। अगर आप इस पे क्लिक कर ले, सो यू कैन सी आवर इंस्टेंस इज रनिंग। दिस इज अ मशीन, ये देखिए जो हमने इसको नाम दिया था। अगर हम इस पे क्लिक कर ले, सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि द इंस्टेंस इज रनिंग। दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ द इंस्टेंस। यहाँ पे मुख्तलिफ वीपीसी आईडी देखें, सबनेट आईडी देखें। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसका कंप्यूटर नेम ये है, इसका आईडी ये है, राइट। दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस जो को ऑटो असाइंड है। अगर मैं एक काम कर लूँ, आप लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप का सुना होगा, आरडीपी कनेक्शन का। अगर नहीं तो उसका भी लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो यू कैन आल्सो वॉच दैट लेक्चर, ताकि आपको एसएसएच और रिमोट डेस्कटॉप का पता चले। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और मैं अपने लैपटॉप में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ओपन कर लूँ, आप भी ये कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, और इसको आप पेस्ट कर दें, कनेक्ट हो जाए। सो इट विल आस्क फॉर यूजर नेम। तो यूजर नेम आपका जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि विंडोज की केस में आपका यूजर नेम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो बाय डिफॉल्ट होता है। पासवर्ड क्या होगा, तो अभी हमारे पास पासवर्ड तो नहीं है। तो पासवर्ड के लिए फिर आप क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए हमारे पास जो हमने की डाउनलोड की है वही की हम यूज करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए, मैं इंस्टेंस पे जाता हूँ। अगर हम इंस्टेंस को सेलेक्ट कर ले, और डिक्रिप्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, व्हेन यू सेलेक्ट द इंस्टेंस, यहाँ पे एक ऑप्शन है कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, सो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल क्लाइंट। व्हेन यू क्लिक हियर, सो अभी हमारे पास पासवर्ड नहीं है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन पासवर्ड क्या है। सो व्हेन यू क्लिक गेट पासवर्ड, यहाँ पे अपनी की अपलोड कर लेंगे जो आपने डाउनलोड की है। सो मेरे पास वो की पड़ी है डाउनलोड्स में, यहाँ से मैं इसको अपलोड कर लूँ। दिस इज माई की। व्हेन यू डिक्रिप्ट इट, ये पासवर्ड अपने पास लेट्स से नोटपैड में सेव कर लो, राइट। ये मेरा पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर ले, एंड ओके। एंड फाइनली हम उस मशीन को हमने एक्सेस किया जो कि हमारे क्लाउड में चल रहा है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? सो वी जस्ट मोस्टली हम एसएसएच और विंडोज एक्सेस करने के लिए वेस्टर्न सर्वर भी यूज करते हैं ना। हाँ, वो बेस्टन का भी हमने वो लैब नहीं किया। अभी हम फोकस कर ठीक रहे है, हैं ठीक। RDP के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी बेसिक्स में तो पढ़ा रहा हूँ इनको। हाँ, बिल्कुल। मेरा एक सवाल होगा, वो जो प्रोडक्शन में कैसे यूज करना है, वो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास में सबके सामने ही ना। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है मिस्टर मोहम्मद उमेर का। द क्वेश्चन इज कि पासवर्ड विल बी सेम इन ऑल द टाइम। यस, यही पासवर्ड होगा क्योंकि वही हमने एनक्रिप्ट किया है। हम whenever अगर इस you want पासवर्ड को to, चेंज करना चाहे तो? we can we can change it। हम दूसरी की भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। नहीं नहीं, दूसरी की तो वो हुआ ना कि जैसे हमने एक की पेयर रखा, उसी को सारे विंडोज में डाल के सबके लिए सेम रख दिया। एक तो वो है,
ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, एक आई गॉट योर हम पॉइंट। अपना पासवर्ड रखें, जैसे मान लीजिए abcd@123, सपोज दैट बिल्कुल वो एडमिशन का। बिल्कुल वही सेम सिचुएशन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं ये हम आप ये समझ ले कि एक मशीन हमने डिप्लॉय किया और हमने थ्रू पब्लिक उसको एक्सेस किया। हम जब वीपीसी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, हम ये रिमोट एक्सेस ये वाली हम ये डिसेबल करेंगे, हम वीपीएन टनल्स के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर हो। अभी अगर आप इसको समझे तो ये मेरे तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आपका ये मशीन हाँ पब्लिकली एक्सेसिबल। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट लिनक्स का हमारा मशीन, चलिए मैं एक्सप्लेन थोड़ा वो कर लेता हूँ, अपना सवाल बना ही लेता हूँ कि मान लीजिए मेरा लिनक्स का मशीन है और लिनक्स का मशीन हमेशा एसएसएच से एक्सेस होगा पुट्टी के थ्रू। ओके, जो मेन पासवर्ड है रूट का वो भी इसी तरह इंटरप्टेड होगा। हम अगर चाहते हैं कि उस रूट का पासवर्ड हम अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें तो कैसे रखें, फर्स्ट सेकंड, कि उस रूट उस लिनक्स मशीन पे मान लीजिए टीम में 10 मेंबर एक्सेस करेंगे पुट्टी से, हर किसी को उस पर काम करना है, तो 10 बंदे 10 यूजर आईडी बना, उन 10 का पासवर्ड डिफरेंट रखना होगा, या सब अपने अपने अकॉर्डिंग रखे, या सबका सेम पासवर्ड होगा। माय गॉट वो योर सारी पॉइंट, चीजें मतलब जिस तरह वो समझ वीडीआई कैसे, वाला। हाँ, हाँ बिल्कुल। एज ए प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है, ये जो एक ठीक है, चीज है ना, वो मुझे क्लैरिटी नहीं हो पाया है। मैंने ठीक है, 2 बार पढ़ा अपने से, लेकिन ये नहीं हो पाया। सही है, खैर वी विल डिस्कस दैट। अभी ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह जाना। तो टास्क नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया है कि हमने एक इंस्टेंस को लॉन्च किया और हमने इसको एक्सेस किया। एनी क्वेश्चन हियर? अच्छा, मेक श्योर व्हेंस यू आर डन एक चीज आप नोट कर ले। सो आप वापस जाए अपने इंस्टेंस की उस पे, जो आपका इंस्टेंस व्यू है, ये वाली, इसको सेलेक्ट कर ले इंस्टेंस को, और यहाँ पे आप लोग टर्मिनेट इंस्टेंस पे क्लिक कर ले। सही है? टर्मिनेट मीन्स आई वांट टू रिमूव हम्म। दिस। बिल्कुल, आई डोंट वांट दिस एनीमोर। तो ये मशीन जो है बिल्कुल मैं नहीं चाहता। मतलब आपने लैपटॉप लिया था, आपने वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ये तो टर्मिनेट होगा। अगर आप जाए तो सिक्योरिटी ग्रुप्स पे जाए, तो इस मशीन के साथ एक सिक्योरिटी ग्रुप भी लॉन्च हुआ था, आप इसको भी डिलीट कर ले। सिक्योरिटी ग्रुप तो डिफॉल्ट था ना। नहीं, एक डिफॉल्ट था, लेकिन इस इंस्टेंस के साथ एक क्रिएट हुआ था। तो वो हमने मांगा था क्या कि हमें एक हाँ हाँ सिक्योरिटी ग्रुप बिल्कुल अलग चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तभी। हाँ एग्जैक्ट। अच्छा, एक सर और चीज। ओके ओके, आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, एक गिव मी 1 मिनट। की पेयर्स पे जाएं। ये जो की पेयर है मैंने ये भी रिमूव किया। तो आपने ये एक्टिविटीज करनी है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट या लॉन्चिंग के टाइम पे। जो चीजें आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप नोट करते जाए। अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन में भी आप बेशक डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए, तो बेशक उसको रिमूव कर दें। तो ये देखें, जो चीजें इस इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड थी वो मैंने रिमूव कर दी। अभी ये भी वो हो जाएगा टर्मिनेट। जी मिस्टर तो अगर वो की कलीम। पेयर को अगर हम डिलीट वो की पेयर को अगर हम डिलीट नहीं करते, तो उस की पेयर को हम बाद में भी यूज कर सकते थे। बिल्कुल यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने वैसे ही मतलब हाँ स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको हाँ आसानी हो। हाँ। ओके, मतलब की पेयर वहीं स्टोर रहता है, और जितने बिल्कुल इंस्टेंस बनेंगे सबके नए की पेयर में तो सारे वहाँ रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, इंस्टेंस आईडी के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली वही होगा। ओके। चले जी कलीम, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम भी है हो जाता है। तो सर वो वॉल्यूम फिर हम एट द एंड जब टर्मिनेट करेंगे EC2 इंस्टेंस, तो वॉल्यूम को भी टर्मिनेट करना होगा कि नहीं, वो खुद ब खुद हो जाता है फिर टर्मिनेट? वो डिलीट हो जाता है। वो डिलीट हो जाता है। कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजें वो इंस्टेंस के साथ
वो खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन कुछ जो है वो आपने वो करना होता है। श्योर सर। एग्जैक्टली चले एक दूसरी वही लैब को दोबारा से रिपीट करते हैं। देखें, मैं आ गया इंस्टेंस पे। इस टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च लिनक्स इंस्टेंस। सही है, तो आप जाए सर लॉन्च इंस्टेंस। सर एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर इसमें अगर कोई दूसरी डिस्क ऐड करनी होगी तो वो भी इधर से होगी EC2 हाँ में? हाँ, स्टोरेज को ना टच करें अभी। अभी सिर्फ मैं स्टेप ठीक है। वाइज आपको जा रहा हूँ। ओके ओके। मैंने जो अभी ये आप लोगों के लिए प्लान किया है वो मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं बस। अब ये वाली एक्टिविटी हम कर रहे हैं। सही है। सो वी आर ओनली, आप जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है इससे रिलेटेड पूछा करें। चलिए जी, तो लॉन्च इंस्टेंसेस। अच्छा, दिस टाइम लेट्स से EC2 डैश VM2 डैश KBIT AWS बेच 1। कौन सा? लिनक्स का मुझे चाहिए। सही हो गया। इंस्टेंस टाइप वही T2 माइक्रो। आई नीड अ की पेयर VM2 की पेयर क्रिएट कर ले। नेटवर्क सेटिंग सेम रखे। क्रिएट, ये देखे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप मैं कह रहा हूँ सही है। बाय डिफॉल्ट इसमें SSH अलाउ होगा। ये क्या है सिक्योरिटी ग्रुप्स, वी हैव एन सेपरेट टॉपिक ऑन दैट। ऑटोमेटिकली इसके साथ एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, रूट वॉल्यूम अटैच होगा। वी आर फाइन विद दैट। इसको आप लॉन्च कर लें एंड दैट्स इट। आसान है कि नहीं? इज इट ओके? हम्म। यस सर। चले जी, परफेक्ट। अभी हमने क्या करना है? अभी हमने इसको एक्सेस करना है। तो सही है, तो हमारे पास एक दूसरा इंस्टेंस भी डिप्लॉय हो गया, वो लिनक्स का। अच्छा, लिनक्स इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए हमें सेम पब्लिक आईपी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाए, ये देखिए पब्लिक आईपी, ये हमारी पब्लिक आईपी है। अच्छा, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें SSH के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे SSH -i। की पेयर कहाँ पे है? जो मेरी की पेयर। मेरी की पेयर जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, ये डाउनलोड पे है। सही है। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं तो इस की पेयर का जो पाथ है वो मैं कॉपी कर लूंगा। सही है, मैं आपको ये कमांड लिख के देता हूँ, नो वरीज। और उस की पेयर का नाम क्या है? VM02 की पेयर डॉट PEM। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है EC2 डैश यूजर @ और जो पब्लिक आईपी है आपकी वो आपने कॉपी करनी है। मैं ये कमांड आपको लिख के देता हूँ, बल्कि मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आपके चैट बॉक्स में भी इधर मेंशन करता हूँ, और आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी मैं सही है। और इसको आप एंटर कर लें। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस। सो फाइनली हम उसी लिनक्स इंस्टेंस पे एंटर हो गए।
एनी क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है? सर हम्म। सर अगर ये लिनक्स जो है ना ये सर्वर ना हो और डेस्कटॉप वर्जन हो तो सर फिर ये ये कमांड जी जी करीम। सर अगर वो डेस्कटॉप वर्जन हो तो फिर जिस तरह हमने वो विंडो एक्सेस किया तो फिर वो भी इसी तरह एक्सेस करेंगे? नहीं, लिनक्स को एक्सेस करने के लिए हम मोस्टली SSH यूज करते हैं, राइट? जी सर। और अगर आपके पास और इस तरह की कोई थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल हो, मतलब बाद में मतलब आप चाहते हैं कि उसी के थ्रू हम एक्सेस कर ले, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन नॉर्मली लिनक्स की जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है। अच्छा, अगर आप उबंटू की बात कर रहे हैं तो यू कैन जी सर। चेक अबाउट दैट कि इसको हमने किस तरह, RDP तो बेसिकली हम यूज करते हैं विंडोज बेस्ड मशीन्स के लिए। लेकिन सर वो उबंटू या सेंटोस भी हो गया इसमें भी तो ग्राफिक्स होते हैं ना, अगर डेस्कटॉप हम उसे एक्सेस करते हैं तो फिर वो किस तरह करेंगे? अच्छा, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं वो ठीक है, इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए, बिल्कुल। सही है सर। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? मैं अभी एग्जिट होता हूँ और लेट मी स्टॉप दैट इंस्टेंस अगेन। और यहाँ पे इसको भी मैं टर्मिनेट, सही है। फिर यहाँ पे जाए, सिक्योरिटी ग्रुप्स देखें और इसको डिलीट कर लें। हेलो हम्म, हेलो, जी जी। स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ अभी आया, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, बता देंगे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट आपने लिखा था उसके बाद का? हाँ वो मैंने ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर दिया है उसमें। नहीं नहीं, वो कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद क्या करना था, एंटर मारने के बाद वो बस सेम सिर्फ वहां से यस, उठा लेगा? हाँ सिर्फ यस कर ले बस। अच्छा। हाँ हाँ, विल आप हम्म। लॉग इन हो जाएंगे उस पे। अच्छा, पुट्टी से नहीं जाना है? हाँ मैंने उससे कर लिया था, पुटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो वाला मेथड यूज किया, कमांड प्रॉम्प्ट वाला। अच्छा, पुट्टी से तो फिर डायरेक्ट पब्लिक आईपी एक्सेस करना होगा ना? तो यहाँ पे भी मैंने पब्लिक IP, अगर आप मेरी कमांड देखें तो उसमें भी मैंने। अच्छा, तो पुट्टी से अगर एक्सेस करेंगे तो वहां पे फिर उसका पासवर्ड सर्टिफिकेट अच्छा, कैसे गिव मी अपलोड वन करेंगे? सेकंड गाइस, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया, चले जी। सो हमने एक लैब कंप्लीट किया जिसमें हमने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया। आप लोगों के लिए एक्शन आइटम ये है कि जो आपने वही लेक्चर जो मैंने आपको ऑलरेडी जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आपके पास जो लेक्चर थी वीमवेयर वर्कस्टेशन की, राइट? तो उसमें आप अपने वीमवेयर वर्कस्टेशन को एक्सेस करें या ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को, उसके ऊपर भी वो करना है, VMs बना ले। एक तो AWS के ऊपर बना ले और यहाँ पे भी सीख ले। ये देखे, यहाँ पे भी यही सीन होता है। ये अगर आप क्लाउड के अपना एक एनवायरनमेंट आप बना रहे तो आपके पास VMware वर्कस्टेशन है, ये देखें, ये आपका हाइपरवाइजर है। तो हार्डवेयर भी आपका अपना है। क्लाउड में क्या होता है कि वहाँ पे हार्डवेयर उनका होता है, हाइपरवाइजर भी उन्होंने इंस्टॉल किया है। आप सिर्फ रिक्वेस्ट डालते हैं और वो आपके लिए एक VM क्रिएट करता है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे VM क्रिएट करते हैं। आप नेक्स्ट करते हैं, आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि कौन से हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम मुझे VM चाहिए। फिर आप लोकेशन डिफाइन करते हैं, फिर आप स्टोरेज साइज, और फिर जब आप क्रिएट करते हैं, राइट, और फिर यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो वो जो लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसको आप लोग जो है वो देख लें। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है उमेर का। उमेर बिल्कुल सिक्योरिटी ग्रुप्स का मेरे ख्याल में चार्ज नहीं है उसका, लेकिन फिर भी हम इसलिए करते हैं ताकि एक प्रैक्टिस से हम वैसे भी टेस्ट प्रैक्टिस करें। प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली आप चीज़ें एक दफ़ा डिप्लॉय करके फिर आप उसको इतना नहीं चढ़ेंगे, राइट?
सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी।